This meeting is being recorded. Hello guys, Vishal this side, and today I'm with one of the topper from IIT ZAM paper. So let's start the conversation with him. Congratulations for achieving all India rank first in the IIT ZAM Zoology examination. My first question is that what is your name and where have you done your graduation from? Hello everyone, my name is Shubham Bonik. I have done my bachelor's in geology from Jadavpur University, Kolkata. Perfect. Which paper of IIT ZAM you appeared in and what was your rank, score and marks in IIT ZAM paper? I appeared in the paper of geology of IIT JAM and my score was 90 90. Okay. out of 100. Out of 100. And you appeared in 2021's paper, right? 2021. How many times have you attempted the IIT ZAM paper? This was my first time that I had attempted IIT JAM and that. Okay, perfect. When did you decide that you want to attempt the IIT ZAM exam as serious career option? When did you started preparing for IIT ZAM 2021? Actually, in our bachelor's, everyone knows about IIT JAM, and even I had also thought that about a few months before the exam, I might start preparing for the exam. But the when the lockdown happened, it actually gave me a little push to like seriously start preparing for the exam, and I started preparing about 10 to 11 months before the exam. ओके ओके सो जब तुमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा शुभम सो एट दैट टाइम तुमने क्या प्लान किया था कि मुझे एमएससी करना है तो आईआईटी से करना होगा मास्टर्स या फिर तुमने कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था जब तुमने पढ़ाई शुरू की ग्रेजुएशन की उसके बाद ये प्लान बना तुम्हारा सर जब मैं एडमिशन हुआ तो मैंने सुना था जैम के बारे में लेकिन उतना एकदम मतलब प्री डिसाइडेड नहीं था क्योंकि मेरे जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी मास्टर्स है और लाइक वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है तो ऐसे कुछ नहीं था कि उसी के लिए ही टारगेट करना था इट वाज जस्ट लाइक अ बैकअप लाइक अगर हो गए तो अच्छा होगा नहीं हो तो ठीक है मतलब एक मेरा सीखना भी हो जाएगा उसके साथ भी परफेक्ट परफेक्ट डिफिकल्टी लेवल की अगर अपन बात करें गेट 2020 सॉरी नॉट गेट आईआईटी जेम 2021 पेपर की सो उसके बारे में थोड़ा व्यूज शेयर करो तुम्हारा जैम 2021 बहुत ही लाइक एक स्टैंडर्ड ही पेपर था लेकिन इस साल लाइक नॉट इस साल सॉरी 2021 में कुछ ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आए थे जो नॉर्मली नहीं आए थे जैम प्रीवियस ईयर से और ये हर साल ही होता है कि कुछ नए नए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और लाइक सिलेबस थोड़ा चेंज होता है थोड़ा पैटर्न होता है लेकिन नॉर्मली अगर कंसिडर करूँ 80 to 90% पेपर स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा था और थोड़ा 10-20% थोड़ा ट्रिकी थोड़ा अलग टाइप का था 2021 में So IIT ZAM 2021 was conducted by ISC, right? ISC बेंगलोर ओके सो तुम इस बार कंडक्ट शायद आईआईटी कर रही है सो तुम्हारा कुछ व्यू है कि आईएससी जब पेपर कंडक्ट करवाती है सो कुछ टफ लेवल होता है उसका या फिर आईआईटी के कंपैरिजन में एक्चुअली सर मतलब आईएससी ने शायद इस साल जैम पहली बार लिया था तो अभी मुझे थोड़ा पेपर अलग लगा था नॉर्मली जैसे आईआईटीज लेती है अभी मतलब आईएससी का मतलब बाकी पेपर मैं श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने गेट में शुरू किया है कि नहीं वो श्योर नहीं हूँ अगर वो होगा तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि मतलब वो लोग क्या ऐसे ही स्टैंडर्ड करते हैं या लाइक इट वाज जस्ट लाइक नॉर्मली बट इट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट लाइक फ्रॉम अदर आईआईटीज और नॉर्मली अदर जैम एग्जाम ओके ओके परफेक्ट Okay, This meeting is so being which books, study materials did you follow for IIT ZEM preparation? Please name some very important must-read books for IIT ZEM's geology paper. Some very important books I would like to include, like J.D. Winter. Everyone knows, like it is a book for igneous and metamorphic petrology, and it is like everyone knows that in bachelors you have to read this book. Along with this, there are many books like Nichols might be there, and off the top of my head, I can guess like Mineralogy by Dexter Perkins. That is also very important, and there are actually many books, and I would be very happy if I could share a Word document or any PDF where I can mention the name of some of the important books as per the topics, and maybe sir you can share it like because Sure, there are sure. actually many You can books share regarding with us and different we yes will and post it. Yeah. one
Yeah, Yes, sir. you can share Yes, it and with one us. important book. Yeah, please. One important book which I would like for everyone to buy is like from one of the from two seniors of my college. Like it is a mock test book actually, and it is one of the best books I can like I have ever done for JAM test series. And the book is written by Niloy Chakraborty and Rohan Nondi. And I guess everyone who does bachelor's they also know about this book, but I thought I should mention it once. Like Yeah, good, good. You can share some PDFs with us, then we will definitely share yes, with sir, sure. our audience on findmytest.com. I would like to introduce our website to IIT Exam aspirants. Guys, we provide online mock test series for GATE examination, but now for IIT Exam 23, we are going to provide the test series for all the papers. So you all guys, if you are preparing for IIT Exam, then you can sign up on findmytest.com with your particular paper, and you can take a test series from there. And definitely I'll share the Shubham's PDF also, which he will share with us. So it will be free of cost for you. So guys, visit findmytest.com, and if you have any guidance related problem, then you can chat with our experts on our WhatsApp support chat, which is 950993905 and the number is given in the description too. So go there and take free guidance and take some test series and give a boost to your preparation. Okay, my next question is that what was your revision strategy? Regarding revision, I made sure that whenever I attempted any mock test questions or even the previous year jams to specifically mention the mistakes, like specifically write down the mistakes which I'm making and work on them like much more rather than the ones which I could do easily. And revision is very important. Like for the first few months, I mainly had learned and I made a little bit of notes, but the about I guess 3 4 months it was mainly just about continuous revision because like revision is very important for jam. Okay, so Shubham, अभी IIT exam का paper 13th of February को है, I think. So aspirants are preparing very hardly, you know, and it's very crucial time for everyone because exam से कुछ दिन पहले का जो time होता है बड़ा headache वाला होता है. अगर आपकी preparation अच्छी भी है, so भी आप थोड़े tense रहते हैं कि what will be happen at exam day, you know. So उनके लिए तुम कुछ कहना चाहोगे उन एस्पिरेंट्स के लिए कि कैसे वो अभी रिवीजन कर सकते हैं? आई थिंक कि ये टाइम है रिवीजन करने का ही, कुछ नया पढ़ने का तो है भी नहीं है. सो रिवीजन स्ट्रेटेजीज आईआईटी जैम 22 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या होगी इस वीक की? एक चीज मैं लाइक कहना चाहता हूँ कि अगर मतलब आप अभी हाँ आपने जैसे कहा कि न्यू कुछ नहीं एकदम ही अटेम्प्ट करना है, अभी जो हो गया तो लाइक जो आपने पढ़ लिया तो वही मेनली रिवीजन करना है. एक स्ट्रेटेजी जो मैं दे सकता हूँ कि अभी आप क्वेश्चन पेपर्स देखिए, लाइक क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से रिवीजन किए. क्वेश्चन पेपर भी बार बार रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैम का प्रीवियस ईयर्स का जो दिया था. और ऐसे आप कर सकते हैं कि अगर लाइक एक क्वेश्चन आपने देखा था उस टॉपिक के रिलेटेड आपने अपने नोट्स में थोड़ा देख लिया कि अच्छा इस टॉपिक का इतना नोट्स है, क्योंकि जैम जो करता है कि जो क्वेश्चंस एक साल आता है उनका हाई प्रोबेबिलिटी ये होता है कि वो क्वेश्चन अगर नहीं आए लेकिन उनके सराउंडिंग क्वेश्चंस कुछ आ सकते हैं. लाइक वो उन कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके जो लाइक जो जैम एस्पिरेंट्स है वो जानते ही होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन या ऑल्टरनेट ईयर्स में आता है. तो ये एक रिविजन स्ट्रेटेजी मैं कह सकता हूँ कि अभी जैम के क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए. और एक और चीज है कि मतलब गेट के अभी मतलब ना मत देखिए अगर आप थोड़े पहले होते, लेकिन गेट के आप 1 2 साल के जैसे 2020 और 21 दे सकते हैं. जो जियोलॉजी के पोर्शन है, एक इजी पोर्शन होता है जियोलॉजी का, लाइक पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए वन जो होता है वो बहुत ही जैम के रिलेटेड ही है, तो आप वो थोड़ा क्वेश्चन दे सकते हैं एक जस्ट रिवीजन के लिए. ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट द गेट एग्जामिनेशन, गेट राइट? गेट एक्चुअली हाँ, हाँ गेट ए गेट में में इजी जियोलॉजी, पोर्शन है जियोलॉजी. हाँ पार्ट ए और पार्ट बी होते हैं जिसमें जियोलॉजी और जियो फिजिक्स दोनों होते हैं. सो जियोलॉजी का हाँ हाँ पोर्शन देख सकते हैं एस्पिरेंट्स. गुड गुड गुड. So what are हाँ. some important topics that should be especially focused by IIT exam aspirants? इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो बहुत है, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ जो मैंने खुद किया था कि बिफोर आप कुछ प्रिपरेशन या कुछ भी स्टार्ट कीजिए तो पहले आप 1 2 दिन टाइम लेके आप लास्ट 15 to 16 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप देखिए और एक कॉपी या कहीं भी लिखिए कि इस सब्जेक्ट में से क्या क्या टॉपिक के क्वेश्चन आ रहा है. और ये एकदम श्योर है कि आप देखेंगे कि ईच सब्जेक्ट में से 5 to 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे मैंने कहा कि इधर वो हर साल आ रहे हैं
या ऑल्टरनेट ईयर्स में आ रहे हैं, ऐसे कुछ हो सकता है। तो वही मैं एडवाइस करूंगा कि उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पहले पूरा अच्छे से कीजिए, बाकी का भी पढ़ना जरूरी है, लाइक जो जो थोड़ा ऑल्टरनेटिव थोड़ा टॉपिक्स ये इधर उधर जो आपके कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन मेनली फोकस आप वहां से शुरू कीजिए। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईच सब्जेक्ट में आपको मिल जाएंगे अगर आप क्वेश्चन पेपर लाइक रिविजन करेंगे। राइट, राइट। सो पेपर करते वक्त बहुत सी सिली मिस्टेक्स होती हैं, काफी सिली मिस्टेक्स, सब कुछ आता रहता है बट सिली मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। सो सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए? सिली मिस्टेक्स को एक चीज जैसे मैं अवॉइड करता था, एक तो लाइक नॉर्मल जो सभी कहते हैं कि क्वेश्चन मतलब अच्छे से एकदम मतलब थोड़ा टाइम लेके रीडिंग करने के लिए और रस थ्रू नहीं करने के लिए। और एक चीज जो मैं करता था टू अवॉइड लाइक मिस्टेक्स, कि हम जब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक सोल्यूशन लगता है कि ये हो सकता है, और फिर जब हम वो ऑप्शन में देखते हैं तो वही टिक कर देता है। लेकिन ये मैंने देखा कि मेरे लिए बहुत गलतियां मेरे इसी चीज में ही होती थी। तो मैं एक एडवाइस ऐसा देना चाहता हूँ कि आप ईच ऑप्शन को, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए कि वो क्या हो रहा है, लाइक आप 4 ऑप्शंस को जज कीजिए, आपको जब एक करेक्ट मिलेगा तभी आप उसको दीजिए, वरना आपको अगर देखेंगे कंट्रोवर्सी हो रहा है तो उसको थोड़ी देर बाद या उसको छोड़ ही दीजिए। तो ये एक चीज जो मैं करता था टू अवॉइड दिस सिली मिस्टेक्स। और एक और चीज जो नेट में होता है कि वो डेसिमल प्लेसेस का ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, यूनिट का। तो ये चीजें थोड़ा आप ध्यान में रखिए। तो वही मतलब लास्ट लाइन को अच्छे से पढ़िए जो जैम में नेट में देता है कि आंसर दी आंसर द क्वेश्चन इन 1 डेसिमल प्लेस या इन मीटर। ये थोड़ा सिली मिस्टेक्स वरना हो जाता है। एनआईटी टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस भी हम्म। बहुत सिमिलर से ही होते हैं। सो आपको पूरा क्वेश्चन हम्म। रीड करना होगा, देन ही आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट डेसिमल्स में आएगा। राइट। सो गाइज, ये सब टिप्स जो हैं सिर्फ आईआईटी जैम 23 के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है, अभी जो 22 है उसके लिए भी हैं, और ये हमेशा हर एक एग्जाम के लिए आप फॉलो कर सकते हैं कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि टिप्स टॉपर देते हैं जो हर एक एग्जाम के लिए फॉलो हो सकती है। कुछ चीजें होती हैं टॉपिक्स और ये सब चीजें, वो एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए होती हैं, बाकी हर एक एग्जाम इम्तिहान एक सा ही होता है। सो टिप्स को ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत हो आप हमें 9509939058 पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, देन वी विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरीज। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज योर डेली टाइम टेबल? Daily timetable actually like it varied. Like when I was preparing in my learning phase, like for the first 4-5 months, तभी mainly यही था कि 2-3 सब्जेक्ट्स देखूंगा, जो जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें थोड़ा ऐसे मैंने टिक कर दिया कि अच्छा ये मैंने देखा। तो वैसे करता था पहले। और जो सेकंड हाफ है उस सेकंड हाफ में जो मेनली मैं करता था कि सेकंड हाफ आई मीन कि फर्स्ट 4-5 मंथ्स तो मैंने न्यू चीजें सीख ली है जो जो मुझे लाइक नहीं पता था, और ऐसे। और बाकी के जो है मैं मेनली रिवीजन ही करता था। और उसमें भी सेम ऐसे ही करता था कि 2-3 सब्जेक्ट करता था एक दिन में। अगर सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट का थोड़ा टॉपिक एक्चुअली, क्योंकि अगर ऐसे होता है कि एक सब्जेक्ट पूरा दिन करेंगे तो थोड़ा मतलब लास्ट में बोर्ड लगता है या मन नहीं लगता। तो इसलिए लाइक टू कीप माई अटेंशन स्पैन मैं ऐसे 2-3 सब्जेक्ट का कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हर दिन देख लेता था, और ऐसे करके लाइक एक कॉपी में जस्ट एक बार एक मार्क कर देता था कि अच्छा ये मैंने देख लिया और ये थोड़ा लाइक बाकी था, ऐसे ही कुछ मतलब ओके, यही था मेरा डेली टाइम टेबल। जो तुम्हारा डेली टाइम टेबल तो ये था, और बाकी तुम्हारा पूरे ईयर का और लास्ट मंथ में तुमने क्या कुछ टाइम टेबल में शेड्यूल में पढ़ाई के चेंजेस किए थे? लाइक लास्ट मंथ का शेड्यूल क्या था? पूरे एवरी डे का तो तुमने बता दिया, पूरे साल का। बाकी लास्ट मंथ का और लास्ट वीक का तुमने शेड्यूल में क्या चेंजेस किए थे? हाँ, उसके मतलब मेनली लास्ट मंथ और स्पेशली लास्ट वीक जैसे जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पेपर्स लाइक और कुछ नहीं, लाइक नो नथिंग, नो न्यूट्स, नो बुक्स। मतलब कुछ बुक आप देख सकते हैं जिसमें आपने मार्क किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जिसमें आपको रीडिंग करना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। मैं लास्ट 1 मंथ ऐसे ही सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब ऐसे कुछ कीजिए जो आपका सिर्फ रिविजन हो रहा है, और क्वेश्चन पेपर्स आर द बेस्ट वे। लाइक अगर लास्ट मंथ हो जैसे कहा कि मतलब आप जेम के देखिए और गेट के भी देखिए जो जियोलॉजी के पोर्शन होते हैं, और सिर्फ वही देखिए, उसी का पार्ट ही अगर आप नोट्स में रिवीजन करें तो ही अच्छा है, लाइक इंस्टेड ऑफ लाइक सर्चिंग फॉर न्यू टॉपिक्स और न्यू क्वेश्चंस। लाइक परफेक्ट। यही मेरा एक एडवाइस है। सो एग्जाम टाइम पे एक सबसे बड़ी चीज होती है कि हाउ यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन द पेपर?
सर एक तो मैंने स्ट्रेटेजी सोच किया था कि लाइक अगर मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, लाइक गेस वर्क एकदम ही नहीं करना है। लाइक वो 2 मार्क्स, लाइक अगर लगता है कि 2 मार्क्स अगर हो जाए तो अच्छा, लेकिन उसका नेगेटिव लाइक बहुत रैंक में भारी पड़ जाता है, ऐसे लाइक हम लोग समझते थे पहले ही। तो ये एक बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट चीज है कि नो गेस वर्किंग। एक और चीज जो मैंने कहा कि वो ऑप्शन ईच देखना है, एक क्वेश्चन रीड करके ईच ऑप्शन को जज करना है कि वो सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं। और नेट में आप जो कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि बैक कैलकुलेशन करके कि एक पैरामीटर, आप क्वेश्चन का एक पैरामीटर को लेके अननोन बना के और अपना सोल्यूशन उसमें घुसा के आप देखेंगे कि वो आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके मैंने मेनली अपना क्वेश्चन पेपर किया था। और जैम में जो होता है कि आपका 1.5 या 2 घंटे में ही पेपर हो जाता है, लाइक एक बार पूरा करना। तो लास्ट 1 आवर मैंने वैसे ही रिविजन के लिए अच्छे से एक बार रीडिंग कर करके, तो लाइक जैसे मैंने कहा मैंने वैसे ही रखा था। Perfect, perfect. So, Shubham, any suggestion for IIT JAM aspirants? It's my last question. सजेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाइक रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक रिविजन, बिकॉज जैम का सिलेबस इतना यूज है, क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड ही आता है लेकिन सिलेबस इतना यूज है ना कि मतलब आप अगर बार बार रिविजन नहीं करेंगे, लाइक आपको बार बार लाइक देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो मैं यही कहूँगा कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड चीज जो मैं लाइक खुद को भी लाइक समझाता था और लाइक कहता हूँ कि जैम आपने जो प्रिपरेशन लिया है, ये जो नॉलेज आपका है, ये मतलब लाइक ये वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब आप जैम को ऐसे मत देखिए कभी कि मतलब ये ही एंड पॉइंट है, जैम नहीं हुआ तो लाइक, क्योंकि वो एक बर्डन डाल देता है। लेकिन मैं जैसे सोचता था कि जैम इज लाइक अ स्टेपिंग पॉइंट, कि हाँ इसमें अगर मैं जैम थोड़ा अच्छा भी कर लूँ या नहीं भी करूँ, जो मैंने नॉलेज सीखा है यही मेरा गेट या नेट में अगर मैं दूंगा काम में लगेगा। जब एमएससी करूंगा तब मेरा कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। तो आप जैम को ऐसे देखिए कि इट इज लाइक योर नॉलेज टेस्टिंग, नॉट कि यही लाइक एक एंड पॉइंट है। तो थोड़ा मतलब टेंशन कम हो जाता है ऐसे करने के लिए। तो लाइक यही कि आपने अच्छे से पढ़ा है, जैम का रिवीजन आपने सब किया है, एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर वेदर लाइक जैम गोज गुड और नॉट। सो दैट इज इट, लाइक दैट इज माय फाइनल पॉइंट। Right, right. Wow, you shared very amazing tips, and definitely all the shared tips will help all the IIT JAM aspirants. Okay, Shubham, thank you so much for giving your valuable time. And once again, we would like to congratulate you for securing all India rank first in geology paper, IIT JAM geology paper. Wow. Thank you, sir. Thank you. I would like to thank Find My Test for giving me this opportunity to speak here. You're most welcome. You're most welcome. And guys, you are allowed to ask anything else on our WhatsApp support chat. So don't forget to share your queries related to examination preparation and all. And don't forget to register yourself for the test series on findmytest.com, which will be available from the maybe April month. So right now there is no test series for IIT JAM, but from April month you will get some tests. Thank you so much, Shubham, once again. Thank you, sir. Yeah.